other story this evening. There is another row that has erupted in the state of West Bengal, where a Trinamool Congress district president in Malda issued a shocking and a violent threat to the Bharatiya Janata Party. The leader in question is Malda's TMC district president, and his name is Abdul Rahim Boksi. He was addressing a gathering. He targeted BJP's Khagen Murmu, and he said, and I quote from what he said, "If I hear you call Bengalis, Bangladeshis or Rohingyas even once more, we will pour acid down your throat and silence your voice." That was the chilling threat that he issued at a public event. He also added, and once again I'm going to quote from what he said, "Remember, this is West Bengal. We are Bengalis and we will not let you speak. We will burn your mouth with acid." So the Malda TMC leader also called for a complete political and social boycott of BJP, who in his words do not support the Bengali language or Bengali people. Listen in to one, his threat, and then how he brazens it out. আমরা কি রোহিঙ্গা, আমরা কি বাংলাদেশি, আমাদের পরিবারের ছেলেরা কি বাংলাদেশি রোহিঙ্গা? এই ধরনের বক্তব্য যারা একজন বিধায়ক হিসাবে করতে পারেন, সেই বিধায়ক সাধারণ মানুষের বিধায়ক নন। তাই তার কণ্ঠটা অবরুদ্ধ করতে হবে। তাই তার মুখের উপরে এসিডটা ঢেলে দিলে তার কণ্ঠটা পুড়ে যাবে, আর তিনি কোনোদিনই পরিযায়ী শ্রমিক বাঙালিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের বক্তব্য রাখতে পারবে না, তাই আমি বলছি। Meanwhile, the BJP was quick to latch on to this comment. They have linked it to Direct Action Day and the mindset that permeated the Direct Action Day. BJP leaders said that this is a mindset that reflects TMC's Talibani mindset. Sample all the reactions. टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। तालिबानी मानसिकता और कल्चर आज फुल डिस्प्ले पर है, जब उनके एक नेता सार्वजनिक मंच से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि वो बीजेपी के एक विधायक पर, एमएलए पर एसिड डाल देंगे। अभी कुछ दिन पहले उनकी एक और एमपी ने कहा कि सिर काट कर लाइए एचएम का। उससे पहले हमने देखा है कि इनके नेता फिराद हकीम हो या इनके अलग अलग नेता हो, हुमायूं कबीर जैसे, हिंदुओं को प्रताड़ित करने की बातें होती है। हमने देखा यहां तक कि ममता बनर्जी ने धमकी दी कि प्रधानमंत्री के दांत तोड़ देने चाहिए। एक तरफ ये रोहिंग्याओं और घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जब बंगाल की जनता की आवाज उठाता है तो उनको ये धमकी देते हैं कि वो उनके गले को काट देंगे। इससे यही स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के आम जनमानस को धमकाना, डराना चाहती है, जो उनके घुसपैठिया समर्थन, रोहिंग्या समर्थन वोट बैंक के लिए को एक्सपोज करता है। मैं ममता बनर्जी को कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, जितना रोहिंग्याओं का समर्थन करना है कर लीजिए, जितना घुसपैठियों का समर्थन करना है कर लीजिए। बंगाल के आम जनमानस की आवाज भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। आपको धमकी देनी है दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना डरता है, ना रुकता है, ना थकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास रखता है। देखिए, बीजेपी वर्कर के गले में एसिड डालने की बात और करने की बात यही बंगाल में हो रही है। अराजक प्रदेश बन चुका है बंगाल। डायरेक्ट एक्शन का फिर कॉल दे रहे हैं ये लोग। हिंदुओं के जेनोसाइड करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी बंगाल फाइल्स पिक्चर भी आई है ना, दिखाया गया है। तो बंगाल के हिंदुओं को और देश के हिंदुओं को जागृत होना होगा कि क्या ऐसी शक्तियां भारत में रहनी चाहिए या इनको लात मार के भगाना चाहिए। Not just in the state of Bengal, there are leaders of the INDI in the state of Jharkhand too who are issuing similar threats. So this time it is Congress's Irfan Ansari. He's a cabinet minister from Jharkhand. He's crossed the line even further. He, as the state health minister of Jharkhand, publicly said that if the BJP continues to target him, he will dig their grave. Listen in. देखते रहो, हम यहाँ निकाल रहा हूँ।
मैं परवाह नहीं करता हूं भाजपा का, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ झारखंड की जनता मेरे साथ कहता है बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले तुम्हारा इरफान अताई को कब्र खोद देगा, जाता है पहचानता नहीं इरफान अताई को, हम लोगों ने झारखंड लिया है। मजाक बना के रख दिया। Now, highlighting the dhamki mindset of the INDIA bloc, BJP Sambit Patra is urging courts to take note. मगर आप देखिए किस प्रकार की किलबिलाहट है ऑपोजिशन में। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए, देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। दूसरा, केवल इरफान अंसारी ही नहीं, झारखंड से बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है, यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशी